स्क्रीन शेयर करना Trainer talking. Varun, can you hear me? आवाज कट रही है. Varun, can you hear me? आवाज आओ की बोल. हेलो माइक. Yeah, hello sir, hello. Varun, can you hear me? We'll start. Yes, sir. Yes, Because sir. आप एक ही हो, so let's wait for this. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Hi, Radha, Varun. Good morning once again. So, we'll start now. I don't know why others have not dialed in, but okay. Before I start, any questions from what we discussed last time? Hi. I just want to confirm we are having a PPT session today. When you say PPT session, presentation? Suppose last week we discussed about the slots, so but we didn't get any mail, so I wanted to confirm. हाँ, so आज नहीं है आपका राधा वो पावर आज आपके प्रेजेंटेशंस नहीं आप स्लॉट्स प्रेजेंटेशंस के लिए बोल रहे हो करेक्ट जो प्रेजेंटेशंस के लिए Yes. एग्री हुआ था हाँ वो प्रेजेंटेशन आज नहीं है आपके नेक्स्ट बट आपको ईमेल में क्या है आज आपको प्रेजेंटेशंस आए हैं No, email में equity research आया था, तो I'm just confirming is it today or shifted? नो इट्स बीइंग शिफ्टेड टू नेक्स्ट वीक तो आपको एक और वीक मिला है सो जो प्रेजेंटेशंस हैं आपकी नेक्स्ट वीकेंड होगी सेम स्लॉट्स Okay. Okay. ठीक है सो फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 AM का स्लॉट है तो आपका 10 AM का नेक्स्ट सैटरडे सेम स्लॉट हो जाएगा so I have Damni has given one another week so at least you can prepare and in the interim we will take your doubts and कुछ questions हैं आपके presentation के queries हैं तो वो discuss कर सकते हैं that is the intent Okay. हाँ जी any other question No, not related to that PPT. That's all. Yeah. okay okay so from an equity research perspective uh, so we'll start this so two parts so what I will do between today and tomorrow's session so today we'll go through this equity research can you see my screen Radha can you see my screen Yes. okay when we say equity research is exactly जो presentations आप बना रहे हो उसी को equity research बोलते हैं so which means you're gathering the information about the company to to understand company का business model क्या है company के drivers क्या हैं company की strategy क्या है company के ratios क्या हैं ठीक है and then you're concluding ये वो stock आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए that is what is called as equity research So it's pretty similar. For example, if you want to buy a mobile handset for yourself, then doing reviewing about different mobile sets available in the
equity business and मैं कुछ लिख रहा हूँ ABC, you can write C all. Yes, sir. Strange issues. Why I'm getting this message again and again. So ABC, okay, so how it will work? This research team will do analysis की equity markets में कौन कौन से different stocks हैं और वो different stocks का analysis करके then they will finally tell which stock investor should buy. वो analysis करके वो sales the decision has to go and buy those, then person who goes and buy of the Any question in research, sales, trading?
Okay, so now what we are focusing on this section or in this session between today and tomorrow is this part. रिसर्च टीम कैसे करती है, क्या करती है, कैसा इनका रिपोर्ट होता है, क्या क्या पार्ट्स को एनालाइज करते हैं एंड सो ऑन. ठीक है. So आप probably different segments से कर सकते हो, buy side, sell side and independent. So buy side is when you're doing it for the investors who are interested in buying the shares. So mutual funds हो गए, hedge funds हो गए, they are generally interested on the buy side of the shares, right? So वो buy side research होता है. ठीक है. जो सेल साइड रिसर्च होता है, सेल साइड रिसर्च इज मोर फॉर द कंपनी, फॉर द ब्रोकिंग फर्म्स जो सेल करना होता है अपना आइडिया. एंड इंडिपेंडेंट मतलब आप रिसर्च टीम को पैसा देते हो, कहते हो ये वाला स्टॉक मेरे लिए एनालिसिस करके बताओ. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पेड रिसर्च. दिस इज जनरली एडवांस में आप कंपनी का नाम बताते हो और आप पैसा पे करके बोलते हो कि आप इसके लिए एनालिसिस करो, वो उसके लिए एनालिसिस करके आपको देते हैं. सो दिस इज बाय साइड, सेल साइड एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च. मैंने आपको बता दिया विच इज इन्वेस्टर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल. इंस्टीट्यूशनल मींस द म्यूचुअल फंड्स, पीएफ फंड्स जो बाय करते हैं, एंड रिटेल इज लाइक यू एंड मी, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स खरीदते हैं, बाय सेल करते हैं. दिस आई एक्सप्लेन टू यू. सो जो रिसर्च एनालिस्ट होता है वो एनालिसिस करके सेल्स को देता है, सेल्स जाके आगे क्लाइंट्स को कन्विंस करता है. क्लाइंट अगर हाँ कहता है तो वो अपना ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर फिर ट्रेडर के पास आता है. एंड जब ये ट्रेडर मार्केट में जाके बाय एंड सेल करता है तो वो ट्रेडर उस ट्रेड पे एक कंपनी कमीशन चार्ज करती है क्लाइंट को, एंड दैट इज द वे दिस बिजनेस वर्क्स. ये कमीशन यहाँ पे चार्ज होता है, इसको ब्रोकरेज बोलते हैं. एनी डाउट? ओके, ये सेम मैंने आपको बताया. तो द एनालिस्ट, क्या लादा, एनी क्वेश्चंस? Yeah, I was just saying if you can repeat that slide again, how the business works. सेम स्लाइड है यहीं पे, डिफरेंट पिक्टोरियल ग्राफ में एक्सप्लेन किया. सो दिस एनालिस्ट डज एन एनालिसिस. दिस एनालिसिस इज अ रिसर्च एनालिस्ट. दे डू एनालिसिस एंड दे गिव इट टू सेल्स. देन सेल्स गो एंड स्पीक टू द क्लाइंट. ये पोर्टफोलियो मैनेजर जो है, ये क्लाइंट है, ठीक है, जो भी इन्वेस्ट करने वाला है, वो क्लाइंट को एनालिसिस करके प्रेजेंट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. इफ दिस क्लाइंट गेट कन्विंस, देन वो कहते हैं ओके बाय दिस स्टॉक फॉर मी. एंड देन ये जो ट्रेडर है, जो थर्ड पर्सन है, ये क्लाइंट के बिहाफ पे स्टॉक खरीदता है. ये देखिए यहाँ पे ट्रेडर का क्या काम था. ट्रेडर का काम है एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स. एग्जीक्यूट द ऑर्डर मींस इफ द क्लाइंट इज सेइंग बाय, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर. इफ क्लाइंट इज सेइंग सेल, दैट इज एन ऑर्डर. जो क्लाइंट जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको एग्जीक्यूट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. दैट इज द रोल ऑफ द ट्रेडर. सेल्स का काम है क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, बात करना, उनसे डिस्कशन करना, उनकी जरूरत क्या है, उनको एनालिसिस प्रेजेंट करना, आइडिया प्रेजेंट करना. और रिसर्च एनालिस्ट का टाइम, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डू एन एनालिसिस, टू ट्रैक द मार्केट में क्या चल रहा है, एंड टू गिव रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन मींस बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए. राधा, इज दैट पार्ट क्लियर? वही यहाँ Yes. पे आपको एक डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करा हुआ, ये सब सेम चीज है. Okay. तो जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो दे मेनली फोकस ऑन द लिस्टेड कंपनीज. इसलिए मैंने आप लोगों को भी बोला कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लिस्टेड कंपनी सेलेक्ट करो. द रीजन बीइंग लिस्टेड कंपनी का डेटा अवेलेबल होता है.
उनके एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, उनके स्टॉक प्राइस का हिस्टोरिकल पैटर्न अवेलेबल होता है, सो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अनलिस्टेड कंपनी का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, इसलिए रिसर्च एनालिस्ट भी जनरली फोकस लिस्टेड कंपनीज पे करते हैं, ठीक है। अगेन रिसर्च टीम में जनरली डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, एक टीम बनता है, सो somebody will look at the valuation side, somebody will look at the economy side, somebody will look at and again इसमें भी different sectors allocate होते हैं, so somebody will look at IT sector, somebody will look at banking sector, somebody will look at pharma sector। तो ऐसा नहीं कि एक ही बंदा सारे सेक्टर देख रहा है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हर सेक्टर की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, तो धीरे धीरे आपको एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए उस सेक्टर पे स्पेशलाइज होना पड़ता है। सेम चीज मैंने आपको बोला कि जो सेगमेंट में या जो इंडस्ट्री में, जो नेचर ऑफ द बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, वो ही कंपनी सेलेक्ट करो। एंड रिमेंबर आई एक्सप्लेन टू यू दैट इफ यू आर नॉट somebody who is pretty comfortable with a lot of kind of in technology terms, or you're not comfortable, or you feel the technology is not an area where you're very comfortable of reading a lot of stuff, then avoid that area. This is the reason why, because in that sector, in that industry, you probably need to read more, and hence if the topic or the theme is a little dry for you or is not interesting for you, you probably tend to get frustrated, and you tend to give up, and you don't find that reading too much of relevant to you. So that's why exactly the same what I have requested you earlier, that select a listed company and try and select in that industry or in that sector where you find that it's your comfortable area, or if not comfortable, this is something that you want to learn. And ये रिसर्च बना के आपके ऑडियंस कौन होते हैं? इट कुड बी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, इट कुड बी रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल। सो जो भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, वो आपके इस रिसर्च रिपोर्ट के ऑडियंस हो जाते हैं। सो रोल ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट, द रोल ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है? इज टू स्पीक टू द मैनेजमेंट। कंपनी से बात करके, जिस कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हो, आप उससे बात करते हो, समझने के लिए आपका फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई, वही मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं, पॉटर मॉडल, बीसीजी, मैट्रिक्स, पेस्टल, स्वॉट। तो आप लोगों को बोला गया कि आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से एनालिसिस करो, ठीक है। बट जो बड़े रिसर्च हाउस होते हैं, उनके रिसर्च एनालिस्ट को कंपनी के मैनेजमेंट से कभी कभी बात करने का मौका मिलता है, इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, तो वो वहां से भी वो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, ठीक है। देन दे जनरेट एन आइडिया, एनालिसिस करके दे पास ऑन टू द सेल्स टीम। हमने डिस्कस किया फॉर मास डिस्ट्रीब्यूशन मींस फॉर सेलिंग इनटू द क्लाइंट, they interact with the customers, बहुत कम होता है, but they do that. They provide written commentary, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। रिसर्च रिपोर्ट एक रिपोर्ट बनाते हैं वो, उसके अंदर पूरा रिटन कमेंट्री होता है, पूरा एनालिसिस होता है उनका। दे अंडरस्टैंड द कंपनी, जो आपको बोला गया करने के लिए। जैसे हमने जो लास्ट में मॉडल डिस्कस किया था, हमने भी उसके पूरा बिजनेस मॉडल समझा था। ये सब चीजें होती है जो रिसर्च एनालिस्ट को करना होता है, ठीक है। मीटिंग विद द मैनेजमेंट बता दिया। then management calls, what are management calls? So quarterly जो listed companies होती हैं इंडिया में, they announce the results on a quarterly basis, at least on a quarterly basis. So when you announce your results on a quarterly basis, generally उस result announce होने के बाद जो management होता है, वो एक summary report देता है या एक speech देता है, जिसमें वो अपना quarter का performance का analysis देता है। तो उसमें भी आप बहुत सारी information आप उससे gather कर सकते हैं, तो वो भी वो attend करते हैं, ठीक है। बिजनेस इंटरव्यूज मैंने आपको बता दी, जो आप इंटरव्यूज, और ये एनुअल रिपोर्ट, एक्जैक्टली मैंने सेम चीज आपको बोली है कि एनुअल रिपोर्ट से आपको फोकस करना, बिकॉज यू कांट गो एंड स्पीक टू द मैनेजमेंट, ठीक है। सो यू कैन गेट दिस, यानी आपको जो लेटेस्ट क्वार्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2020, इसके रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, आप इनके रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। उस रिजल्ट के साथ वो अपना मैनेजमेंट अपना व्यू भी देता है कि दिस क्वार्टर आवर रिजल्ट्स हैव नॉट been up to the mark because of ABC reason, or it's up to the mark, whatever. So they give their point of view, and that's where you can use that information as well. And then ये रिसर्च के लिए आप फाइनेंशियल मॉडल वैल्यूएशन, हमने मॉडल किया, हमने वैल्यूएशन किया, अभी आगे आपको दिखाऊंगा। एंड देन यू फाइनली राइट अ रिपोर्ट। जनरली रिसर्च टीम में जब लोग हायर करे जाते हैं, तो जनरली they select into these two categories. So if you're a CFA, generally you're being hired into an associate category. If you're not
CFAs, you're generally hired into this category, analyst, and if you spend good time and perform well, then over a period of time you grow and get promoted towards the senior roles into the research teams. The another way of getting exposure, internships. So we do provide a lot of internships into our research teams. Okay, because there's a lot of work on the internship side. Okay, so in case you're interested or you get any opportunity, you can explore this as well. This is again one of the easiest way to get in the industry, make impact, and most of the time, what at least what we do and what I have seen, generally these internships are converted into your full-time employment, because then company को अगर आप अच्छे लगते हो तो आप उसको company आपको offer कर देती है and then you stay with the organization. ये हमने बात की internship के ऊपर, and generally एक research analyst का day-to-day life कैसा होता है. So generally market खुलने से पहले, before market opens, they try and understand what's the markets for other countries, because different countries के different markets different time zones में work करते हैं. For example, जब इंडिया का market open होना होता है तो कुछ और यूरोपियन मार्केट्स ओपन हो चुके होते हैं. सो यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोज, एंड उससे एक सेंस आता है कि इंडियन मार्केट्स कैसे खुलने वाले हैं. फिर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप मार्केट को ट्रैक करते हो, डिफरेंट स्टॉक्स किस तरीके से मूव हो रहे हैं वो आपको पता लगना शुरू करता है. एंड देन जैसे आपका यू हेडिंग टुवर्ड्स द मार्केट क्लोज, देन आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट पे फोकस करना शुरू करते हो. सो टिपिकली योर generally most of your days for a research analyst generally gets divided into these three categories: pre-marketers, marketers, and post-marketers. सेम चीज जो हमने पहले बात किया, जो generally you start your career at the analyst level, and then depending upon your performance you can grow towards the senior analyst. The next couple of slides are more important in terms of in case you're interested in moving into equity research. So ये चीज important है. Okay, from your career path perspective, you can work as a research analyst, you can work into research analyst, and then you can move towards the sales role. You can work in an industry, means आप एक industry के ऊपर sector specialist बन सकते हो, या portfolio manager के side से भी काम कर सकते हो. And when we go and recruit people into research team, what we look at, intelligence. I think to me, if I have to pick the two most important parts or three most important part for me, this is analytical skills. Does a candidate has an ability to analyze things? Does a candidate has an ability to understand the markets? Market में उसको interest है? Or does he or she has an opinion, and उस opinion का एक logic होना चाहिए? So for me, these are the three critical probably skill set that I generally try and identify when I make an offers. So again, it's an individual assessment, but more or less from a overall perspective, these are the few skill sets those are required. For example, strong writing skills. I don't think this is just too much of a problem, because जैसे जैसे आप work करते हो, आपके writing skills automatically improve होते हैं. Organization बहुत सारी ट्रेनिंग आपको देती है. If you are a part of the research team, कि reports को कैसे लिखा जाता है, हर कंपनी का अपना एक स्टाइल होता है, एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है. So it's not too much of a problem for us. Then in terms of ability to work in teams, ये भी जैसे जैसे आप टीम में काम करते हो, आपके टीम स्किल्स डेवलप होते हैं. ठीक है. So that's why I said for me, the analytical skills, the passion about the market or the interest in the market, and the ability to have an opinion and back it up. I think these are the three important pieces which I would put at the top three. Any question in the first part of this module? No, sir. Okay. So next is types of reports.
So these are different types of reports that we publish. So first is a sector research. Sector research क्या होता है कि for example जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, सो आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में क्या है एनालाइज करते हो, बैंकिंग सेक्टर में rather than doing a research for individual का एनालिसिस करते हो और उस सेक्टर के अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं या जो मेजर लीडर्स हैं उनका ओवरव्यू और समरी आप देते हो, दैट इज कॉल्ड सेक्टर रिपोर्ट और थीमेटिक रिसर्च इसको बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, ये जब आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हो, फर्स्ट टाइम जो आपको बोला गया करने के लिए, तो आप जैसे अगर आपने जो भी कंपनी सिलेक्ट करी आप उस कंपनी का फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो जो फर्स्ट टाइम जो होता है जब आप इनिशिएट करते हो तो उसको इनिशिएशन रिपोर्ट बोलते हैं, जो डिटेल्ड होती है, क्योंकि आप उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाते हो, कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी है वो समझते हो। तो जो फर्स्ट टाइम जब आप एक कंपनी का एनालिसिस स्टार्ट करते हो उस रिपोर्ट को इनिशिएशन रिपोर्ट या इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट बोला जाता है। एनी डाउट इन फर्स्ट टू? Clear. Okay, so then लेट्स अज्यूम मैंने अगर रिलायंस के ऊपर फर्स्ट टाइम एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया, दैट वुड बी इनिशिएटिंग रिपोर्ट, और उसके बाद लेट्स अज्यूम आफ्टर 2 क्वार्टर्स कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, कंपनी को बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कंपनी का कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, एंड दैट चेंज हैज changed my hence I want to give an update to my investor that this is a significant update. Then when I do that analysis again, that is called as maintenance research, because आप कंपनी के पूरा डिटेल रिव्यू नहीं करते हो, कंपनी का आपने बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी का पास्ट कैसा रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, सब वो सब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ऑलरेडी आपने रिव्यू कर लिया है, तो वो दोबारा समझने की जरूरत नहीं। बट ओनली जो चेंजेस हुए हैं, कोई कंपनी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई कंपनी के प्लांट पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी इस तरह की सिग्निफिकेंट चेंज जिसकी वजह से, तो उसी को सिर्फ आप अपडेट करते हो, विच मीन्स जो आपने पहले रिसर्च करी है उसी को आप मेंटेन कर रहे हो, उसी को अपडेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस रिसर्च। एंड द लास्ट टाइप इज सपोज दैट चेंज इज सो बिग इनफ कि पहले आपने अपने रिसर्च रिपोर्ट में बोला था कि स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, बट अब इतना बड़ा चेंज हुआ कि अब आप बोल रहे हो अपनी रिकमेंडेशन को नॉट बाय से आप बाय में चेंज कर रहे हो, सो देन व्हेन यू चेंज द रिकमेंडेशन, दैट इज कॉल्ड एज चेंज रिकमेंडेशन रिपोर्ट। तो आप उसमें वो चेंज क्यों ले आ रहे हो, पहले आपने कंपनी को बोला था बाय मत करो, अब आप एनालिसिस करके बोल रहे हो कंपनी को बाय करो, वो क्यों चेंज आया वो आप इस पार्ट में कवर करते हो। तो ये ब्रॉड 4 कैटेगरीज और आपके रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एनी क्वेश्चन? Are we good with this? Any questions last time in this 4 different types of research reports? Okay. So, yeah. Any question, Radha?
No, it's clear now. So, starting with the initiating coverage report. So, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रेजेंटेशन में आप यूज कर सकते हैं अपने, ठीक है। सो आप अपनी प्रेजेंटेशन में ये सेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राधा, इफ आई मे आस्क, आपने कौन सी कंपनी सिलेक्ट करी है? Tata Motors. टाटा मोटर्स। तो आप टाटा मोटर्स एक्सप्लेन करने से पहले इंडिया में ऑटो सेक्टर का क्या कंडीशन चल रहा है ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो आप इंडस्ट्री सेक्शन डाल सकते हैं जिसमें आप ऑटो सेक्टर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी लास्ट ईयर कोविड का मेन इम्पैक्ट इंडिया में रहा, उसकी वजह से ऑटो सेक्टर वाज वन ऑफ दोज सेक्टर जहाँ पे इम्पैक्ट रहा। प्रोडक्शंस बंद रहे, डिमांड्स कोई खरीदना नहीं चाहता, तो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, तो मुझे नई कार्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सब रीजंस की वजह से ऑटो सेक्टर पे इम्पैक्ट आया। और फिर आप टाटा मोटर्स का जो पार्ट है, उसका क्या बिजनेस मॉडल है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में वो लोग डील करते हैं, किस कैटेगरी में डील करते हैं, वो आप कंपनी सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप, जैसे मैंने आपको सॉर्ट बोला, जो सॉर्ट है उस सॉर्ट में जो थ्रेट है, ये जो वीकनेसेस है, वही रिस्क है आपके, Yes. ठीक है। फिर मैंने आपको जो रेशियोज बोला कि आप कंपनी के 3-4 रेशियोज, जो की रेशियोज आपको लगता है वो पिक करो, वही हिस्टोरिकल कंपैरिजन है रेशियोज का। तो यही चीजें आप कवर करते हो वो रिसर्च रिपोर्ट्स में, और ब्रॉड ये सेक्शंस में आपको लेके आते हैं, ठीक है। Okay. सो ये एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा एक रिसर्च रिपोर्ट। सो इसको इतना ये वही जैसे कंपनी के बारे में बताया हुआ है, सब कंपनी की समरी, उसके ड्राइवर्स क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको जनरली व्हाट वी डू, इसको टॉप डाउन अप्रोच इस तरीके से बोला जाता है, EIC। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, आप टाटा मोटर्स कर रहे हो तो पहले आप इंडस्ट्री का एक्सप्लेनेशन दे दो, इंडस्ट्री में ऑटो सेक्टर क्या चल रहा है, फिर आप टाटा मोटर्स का दे दो। अगर आपको और डिटेल में करना है तो पहले आप इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस करो। E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री एंड C स्टैंड्स फॉर कंपनी। और टॉप डाउन इस ऑर्डर में आप करते हो तो इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। तो पहले आप इंडिया इकोनॉमी के बारे में बता रहे हो, फिर इंडिया इकोनॉमी में से आप एक सेक्टर लिया आपने, ऑटो सेक्टर, उसके बारे में बता रहे हो, फिर ऑटो सेक्टर में से आपने कंपनी लिया टाटा मोटर्स, आप उसके बारे में बता रहे हो। सो आपका जो रिसर्च रिपोर्ट है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनता है फॉर अ रीडर और फॉर एन इन्वेस्टर। बिकॉज लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, राधा सब, सपोज अगर एक ग्लोबल इन्वेस्टर और आप वो रिपोर्ट अपने ग्लोबल इन्वेस्टर को सबमिट करो, पहले वो समझना चाहेगा इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या, पूरी रिपोर्ट पूरा डिटेल में कवर करने की होती है, बट एटलीस्ट यू ट्राई एंड ब्रिंग की हाइलाइट्स और की पॉजिटिव्स एंड की नेगेटिव्स, 2-3 पॉजिटिव 2-3 नेगेटिव्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो वो आपका सेक्शन इकोनॉमिक सेक्शन बन गया। फिर उसमें से आप एक सेक्टर के बारे में कवरेज स्टार्ट करते हो, वो इंडस्ट्री सेक्शन बन गया, एंड देन उसमें से कंपनी के बारे में करते हो। सो एक इन्वेस्टर को फुल मैक्रो से धीरे धीरे एक माइक्रो व्यू मिलना शुरू होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच, और इसको EIC मेथोलॉजी ऑफ इक्विटी रिसर्च भी बोला जाता है। कोई डाउट नहीं? Okay, so in case no question, so ठीक है, ये सब चीजें देखिए आप अपने प्रेजेंटेशन में कवर कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी बोला गया है उसका बिजनेस क्या है, उसका सेगमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, कहाँ है, सर्विसेज क्या है, उसके ड्राइवर्स क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, हिस्टोरिकली उसका क्या पैटर्न रहा है, उसके रेशियोज क्या रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में उसका क्या कोई उसको प्रोजेक्ट मिला है, उसकी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। उसका कॉम्पिटिटर से कितना स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, क्या वीकनेसेस हैं जो आपके सॉर्ट के पेस्टल में आपको मिलेगा। सो इफ यू सी दिस केयरफुली, जो आपको प्रेजेंटेशन बोली गई है वो एग्जैक्टली इसीलिए बोली गई, जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ इक्विटी रिसर्च होती कैसे। कंपनी एनालिसिस, ठीक है, कंपनी एनालिसिस में कौन कौन से सेगमेंट्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से सर्विसेज है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी आई है, वो आपके रेशियोज कैसे रहे हैं। एंड मैंने ये बोला भी था कि आपको सारे रेशियोज, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है, हमने
जिससे हमने क्लास में बहुत सारे रेशियोज डिस्कस करें। अगर आप सारे नहीं कवर कर सकते या इतना टाइम नहीं है, बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा वरना आपको, तो आपको मैंने ये भी बोला है कि आप टॉप की 2 to 3 रेशियोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं if you don't have time to go into detail of everything। देखिए ये वही रेशियोज आ गया आपका, एबिटा मार्जिन्स, ठीक है, इंटरेस्ट। सो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, डीसीएफ ये हमने किया है। मैंने आपको वैल्यूएशन के मॉडल्स कौन कौन से बताए हैं, डीसीएफ बताया आपको, ठीक है, और दूसरा मार्केट बेस रिलेटिव वैल्यूएशन, जिसमें हम ये पीई यूज करते हैं। यही दो मेथड देखिए यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि कैसे आप लोग वैल्यूएशन करते हैं। ये लोग हम कर चुके हैं, डीसीएफ भी कर चुके हैं, मार्केट वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन जो हम रेशियोज पीई यूज करके करते हैं। एग्जाम्पल है कोलगेट का, अगर आपको देखना हो तो ऐसा कुछ आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एक टेम्पलेट है, अगर आपको यूज करना है तो ये देखिए, पहले इंडिया की इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है कि इंडस्ट्री में इंडिया में ओरल सेगमेंट जो विच में डेंटल सेगमेंट जो होता है उसका ब्रेकअप क्या है, टूथपेस्ट टूथ पाउडर के इंडस्ट्री के सेक्शन बता रहा है। ये सारा इंडस्ट्री का ओवरव्यू है, कौन कौन सी कॉम्पिटिटर्स है इंडस्ट्री में वो बता रहा है, तो ये इंडस्ट्री सेक्शन चल रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या पॉजिटिव ड्राइवर्स है इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, ये भी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है। अब यहाँ से कोलगेट स्टार्ट हुआ, तो ये आई हो गया इंडस्ट्री। अब यहाँ से कंपनी पे आया, तो ओके मैंने थोड़ा इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद कोलगेट के लिए, अगर कोलगेट एक कंपनी है तो उसके उसके प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या ब्रेकअप है, कैसे उनका हिस्टोरिकल पैटर्न रहा है, ठीक है, तो ये कंपनी के बारे में बताया है। जो मैंने आपको कहा ड्राइवर्स, पॉजिटिव ड्राइवर्स क्या है, नेगेटिव ड्राइवर्स क्या है, उनके हिस्टोरिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसे रहे हैं, ठीक है, और उसके रेशियोज कैसे, उसके हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस कैसे मूव किया है, जो क्वार्टरली उसके रिजल्ट्स आए, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। अगर आपको मिल सकता है तो आप भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा क्वार्टर एंडिंग दिसंबर का आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं मिले तो उसके पीछे क्वार्टर डाल सकते हैं। तो ऐसे करके एक रिपोर्ट ऐसे पब्लिश करिए। आपको रिपोर्ट नहीं बनाना, आपको पावर पॉइंट ही बनाना है। दिस इज व्हाट the project is all about and this is what the equity research is। हाँ जी, राधा वरुण कोई डाउट है तो पूछिए। आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आपको जो प्रेजेंटेशन बोली गई है वो क्या, उसका क्या थीम है, अंडरलाइन वो कैसे बनाना है? Has this given you more clarity now? Yes, काफी चीजें ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोली जो हम लोग करते हैं, अगेन ये डिपेंड करता है, बट प्रैक्टिकली ये सब चीजें ऐड, जैसे बीसीजी यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने आपको बीसीजी बोला है, सॉर्ट बोला है, पेस्टल बोला है, पोर्टर मॉडल बोला है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल तो यहाँ पे था, रेशियोज भी यहाँ पे हैं, ड्राइवर्स भी यहाँ पे हैं। जो मैंने जो 3-4 चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं वो प्रैक्टिकली हम लोग वो भी यूज करते हैं, जैसे फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, पीएलसी मैंने आपको बताया, तो आप वो भी सब आप ऐड कर सकते हो इन केस यू वांट ऐड दोस पीसेस एज वेल, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें इन टर्म्स ऑफ की जो इक्विटी रिसर्च होता है उसमें क्या क्या पीसेस कवर होते हैं, कुछ डाउट है तो पूछिए, बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट जो अभी तक हमने यहाँ तक किया। ये सारा अपनी प्रेजेंटेशन में भी यूज कर सकता है। अगेन इट्स अ चॉइस दैट यू नीड टू मेक, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और दूसरे सेक्शन में कम करना, तो पिक एंड चूज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रॉडली आपके पास 25 मिनट्स, रफली उस 20 to 25 मिनट्स आपके पास होंगे। सो ट्राई एंड मेक दोस चॉइसेस अकॉर्डिंगली। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट?
Okay, so in case no questions, so ये मैंने आपको बताया टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है. ठीक है, यू स्टार्ट विद द इकोनॉमी, देन इंडस्ट्री एंड देन कंपनी. ठीक है, माइंड मैप अगेन इसका इतना यूज नहीं है बिकॉज आप जब आपकी कंपनी ज्वाइन करते हैं वो ऑलरेडी आपको मैप देते हैं. मैप मीन्स आप रिपोर्ट बनाने से पहले या जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाने से पहले अपने एक ब्रॉड स्केच बनाते हो कि मुझे क्या क्या सेगमेंट्स में रिपोर्ट को ब्रेक करना है. जैसे मैंने बताया बिजनेस मॉडल, रेशियोज, ड्राइवर्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव, SWOT एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, BCG, PLC. ठीक है, एंड देन फाइनली योर कंक्लूजन. तो ये आपका एक मैप या एक स्केच बन जाता है. इसी स्केच और इसी मैप को कंसिडर करते हुए देन यू स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर योरसेल्फ. ठीक है, अगेन ये जो नेक्स्ट पार्ट में कुछ 5-10 स्लाइड्स हैं ये इतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए बिकॉज जो नेक्स्ट पार्ट है इज मोर टू गिव यू insights in terms of जो राइटिंग स्किल सेट होता है वो कैसे होता है. ठीक, आई डोंट थिंक वो आपको इतना जरूरत है बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन का वो अलग अलग स्टाइल होता है कि वो कैसे लिखना चाहते हैं. वो प्रेजेंट टेंस लिखना चाहते हैं, पास्ट प्रेजेंट लिखना चाहते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, किस तरह के वर्ड्स या लिंगो यूज करते हैं. वो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट स्टाइल एंड फॉर्मेट होता है. बट जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, आई थिंक द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज जो आप लिख रहे हैं वो सिंपल हो, सो दैट अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या वर्ड्स का आपने यूज किया है, बहुत ज्यादा एब्रिविएशंस यूज किया है, it becomes difficult for a reader to understand. So try and focus to keep it very simple. Try and be more specific. For example, जैसे ये है, for example, it says Colgate का sales ऊपर चला गया, there's an increase in the Colgate. That statement is of less importance to an investor or to a reader. Vis-a-vis if you say the sales has gone up by 15% or 12%. So you are making it more specific. That is what generally the reader would expect rather than a more generic statement. If you give more specific, try and support your statements with more of a figures, more of a facts, then generally that those research reports are much more preferred vis-a-vis research reports. Those make generic statements. Again, different organizations follow different methodologies. Some organization research house, especially more often UK जो UK based research houses होते हैं, वो लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं. पहले वो कंक्लूजन लिखते हैं और कंक्लूजन के बाद उसका लॉजिक लिखते हैं. बट मोर ऑफन एशियन और मोर ऑफन इंडियन रिसर्च हाउसेस रिवर्स देखेंगे आप, वो पहले लॉजिक्स लिखते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, लास्ट में फिर लिखते हैं बेसिस दिस वी कंक्लूड. सो अगेन, as I said earlier, it's pretty flexible. There's no rule आपको ऐसे ही लिखना है because there is no law around this, but every company has their own pattern and methodology around this. Of course, you should try and keep your sentences as short as possible rather than writing the full para. Nobody is interested in reading the para, so try and ensure your sentences should be simple and as well at the same time should be short if possible. Back referencing, of course, you should try and use it. Back referencing, what does that mean? Suppose on the first page of your presentation, if you have explained something, and let's assume in the 10th page, you are again required to use that information, but rather than explaining it again, you can make the references. This is already been explained on the page 1 or page 2, so that you are not repeating the stuff again and again. So it brings two advantages. One, it does not increase the number of pages of your report. At the same time, जो रीडर है अगर वो एक चीज को एक बार समझ चुका है तो उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, एंड आई थिंक ग्रामेटिकली आई डोंट नीड टू explain this. So your report should be grammatically correct. There should be correct punctuations, correct sentences, correct formation of the sentences. So those should be taken care of. Again, there are softwares who will take care of these pieces as well. Again, as I said, general forms, preferred form, preference should be to make it more specific rather than keeping it generic statements. Of course, I think
The report should be more formal. You should try and avoid using more of a flowery or flamboyant languages. Okay, so that's it. So these are some of the tips on the writing side. So for me, I think, sorry, for you, I think what is more important is the first part. You just slide number 56 है. यहाँ तक I think is a more important part for you. जो second part है, which is last 8 to 10 odd slides, which is explaining more about कि वो जो आप report लिखते हो उसमें क्या क्या pieces है, वो इतना ज़्यादा important नहीं है at this stage, because वो डिपेंडिंग आप किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो, अगर ज्वाइन करते हो तो वहां पे अलग स्टाइल और मेथोलॉजी हो सकते हैं. सो वो आपको अकॉर्डिंगली ट्रेन किया जाता है. सो ट्राई एंड फोकस मोर टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल, relatively more focus on the first part of this module. Yeah, any questions, doubt on this equity research part जो हमने डिस्कस किया before I show you a report, sample report as well? Any questions so far? Okay, so in case no, so for example, so this is sample. So Angel Broking, you know, this is a research house in India. Okay, so again, as I said, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि यही फॉर्मेट अच्छा है, यही यूज करना. हर कंपनी अलग अलग तरीके का यूज करती है. सो डोंट ट्राई एंड स्टिक टू एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट. आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा आपको इस तरीके की बनानी है, बिकॉज ये एक रिपोर्ट है. आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना, तो दोनों में डिफरेंस होता है. रिपोर्ट इज more verbatim oriented. It's more of a sentence formation. A presentation is more about bringing key points, and then you speak during the presentation to explain those points. So please, you don't need to prepare a report, you need to prepare a presentation. So be careful what you're seeing now vis-a-vis what you need to present. But in terms of what this report will bring, so suppose let me change the color. Yeah, so date है, किस डेट का रिपोर्ट हुआ, ये रिजल्ट अपडेट. सो नाउ व्हेन यू सी दिस रिजल्ट अपडेट, ये कौन सा रिपोर्ट हो गया, ये है मेंटेनेंस रिपोर्ट कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, उस रिजल्ट्स का अपडेट दे रहे. सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, फ्यूचर में प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ जाने का. ये करंटली कंपनी के जो डेटा है, ये वो इन्फॉर्मेशन है. कंपनी का मार्केट कैप, बीटा, एवरेज प्राइस, ये सब यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपैरिजन किया हुआ देखिए. ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में. देन कंपनी की क्वार्टर में क्या की चेंजेस आए वो यहाँ पर है. ये सब इंफॉर्मेशन कंपनी जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है उसमें होता है. कंपनी के एनुअल रिजल्ट में से कुछ की रेशियोज, कंपनी का फुल फ्लेज P&L. ठीक है, ये सब एनुअल रिपोर्ट से आता है. उन्होंने ग्राफ फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट किया है. रेशियोज के ग्राफ्स डाले हैं, जैसे ग्रॉस मार्जिन रेशियो हमने किया है. ठीक है, तो वो ग्राफिकल फॉर्मेट में. ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस. ड्राइवर्स क्या है, ये पॉजिटिव ड्राइवर्स है. पीयर एनालिसिस, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं इतने आसानी से. पीयर एनालिसिस इज, फॉर एग्जांपल, आप अपनी कंपनी को, एशियन पेंट्स को दूसरी कुछ कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है,
सो जैसे अभी आपका मार्केट कैप क्या है, उनका मार्केट क्या है, आपका मार्केट प्राइस क्या है, उनका मार्केट प्राइस क्या है, एंड सो ऑन। उसका पी रेशियो क्या है, उस वीजा वीजा आपका एंटरप्राइज वैल्यू ऑन सेल्स कितना है, आपका आरओए कितना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिल जाए तो आप कर सकते हैं, जनरली मिलता नहीं है बिकॉज आपको बहुत सारे कंपनी का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। कंपनी का हिस्टोरिकली शेयर प्राइस का पैटर्न कैसा गया है। तो इस तरीके से ये क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट है, तो इसमें ज्यादातर आप देखो क्वार्टरली के जो रिजल्ट्स है वो कॉपी पेस्ट करे जाते हैं, एंड देन यू डिस्क्लेमर। सो लेट मी सी इफ आई हैव जैसे एक और क्वेश्चन पॉइंट का, ठीक है, तो आपके पोर्टल पे भी अवेलेबल है ये रिसर्च रिपोर्ट्स, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं अगर आपको पैटर्न देखना हो तो। ये देखिए, ये और डिटेल्ड है, यहाँ पे कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, उनके बिजनेस मॉडल कहाँ पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स का ब्रेकअप है, वो सब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगेन एज आई सेड एवरी कंपनी विल हैव अ डिफरेंट स्टाइल एंड फॉर्मेट, आप डिपेंडिंग आप क्या यूज करना चाहते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। एंड अगेन you do not need to prepare a report, you just need to make it in a presentation format which would be only key highlights, and then you will speak or explain about those points. हाँ जी, कोई डाउट क्वेश्चन? Sir, good morning. This is Rahul. So I didn't dial in early. I just dialed it about 10 minutes ago. So थोड़ा इस 56 के ऊपर का स्लाइड थोड़ा दिखा सकते हैं क्या एक बार? I'm not asking to explain, just show it from there. Can you? हाँ, सो उसमें जो एक हमने अभी डिस्कस किया उसमें से मेन चीज यही है कि रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये एक स्लाइड क्रिटिकल है, ठीक है, ये मैं एक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तो इसमें आप देख ही लोगे। सर सिद्धार्थ यार। यस सर। सर आज क्लास नहीं था ना आज एक्चुअली, ये वीक से तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली मेल बिल भी नहीं आया था। मुझे अभी जस्ट प्रीता ने बोला कि क्लास है करके, तो मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया। क्यों मेल नहीं है आपको सिद्धार्थ? बाकी सबको तो आया है, दामनी ने मेल नहीं भेजा? कल नहीं सर, मुझे तो मेल नहीं। राधा आपको मेल नहीं आया? मेल आया था इक्विटी रिसर्च का। अभी जस्ट क्योंकि मैंने चेक किया, मुझे मेल नहीं है कोई। तो वो आप चेक कर लेना दामनी से, बट मेल आया है, ठीक है। और सो बाकी आपको वैसे मेल आता है सिद्धार्थ हर वीक? तो इस पिछले वीक के इस वीक के लिए नहीं आया आपको? हाँ नहीं आया, इससे मैं समझा कि आपने बोला था नेक्स्ट, अभी लास्ट टाइम बोला था ये वीक हम लोग सिर्फ अभी एक साथ है, नेक्स्ट वीक से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा करके। हाँ, तो सामने मुझे बोला कि प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक कर लेंगे, तो एक इक्विटी रिसर्च का मैं टोल्ड ना टॉपिक बाकी है, तो वो टॉपिक पहले कर लो। सो इसलिए मैं उसने भेजा था, तो आई एम लिटिल सरप्राइज कि राधा को आया आपको नहीं, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सबको एक ही साथ आता होगा, इंडिविजुअली तो नहीं भेजते होंगे। नहीं सर, मेरे को लेकिन ये टाइम नहीं है, मैं एवरी टाइम मेल चेक करता हूँ सर, और मैं नॉर्मली क्लास मिस करता नहीं हूँ। वरुण आपको आया मेल? नहीं सर, मुझे भी नहीं आया। हेलो। ठीक है, तो एक बार आप लोग दामनी से चेक कर लेना। बट अभी तक आपने जो बताया वो आप सर फिर से एक बार या तो कल बता दे क्या, क्योंकि फिर बहुत मिस हो गया था। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसका कोई टेंशन नहीं है, दोबारा बता दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि थोड़ा भी मिस हो गया तो वो तकलीफ बता जाता है कभी भी। कोई बात नहीं, आप देख लेना रिकॉर्डिंग, कोई डाउट हो तो पूछना, दैट्स नॉट टू मच ऑफ क्रिटिकल। मैं एक समरी कल बता भी दूंगा। ठीक है सर, फिर प्रेजेंटेशन मेरा भी कल नहीं होगा ना, फिर नेक्स्ट वीक में रहेगा ना? नहीं, सो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी राधा को क्लैरिफाई किया था, आज और कल आपका इक्विटी रिसर्च का टॉपिक बाकी था। ओके, ठीक है।
सो वो टॉपिक आज हम खत्म किया है, कल मैं दोबारा समराइज करा दूंगा। जो प्रेजेंटेशन होने वाला है वो नेक्स्ट वीकेंड पे होने वाला है, तो जिनके जो स्लॉट्स आज या कल के थे वो नेक्स्ट वीकेंड शिफ्ट हो गए आपके। सेम लाइक मेरा संडे का 10 बजे का था, तो नेक्स्ट संडे 10 बजे होगा। करेक्ट करेक्ट। ओके सर, कोई इशू नहीं सर, ठीक है फिर आप ये बता दो, फिर कल हम जो स्लॉट जिसका इस वीकेंड पे है वही स्लॉट आपका नेक्स्ट वीकेंड पे है। कोई इशू नहीं, कोई इशू। अब नेक्स्ट वीकेंड के लिए जो ईमेल, अब ईमेल क्यों नहीं आया मेरे को वो नहीं पता, तो आप एक बार दामनी चेक कर लें, बिकॉज नेक्स्ट वीक के लिए भी जब वो ईमेल भेजेंगे तो उसमें प्रेजेंटेशन लिखा होगा, तो फिर आपको दोबारा ईमेल नहीं आएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो ईमेल आई थिंक जनरिक जाता है, बट एक बार आप चेक कर लेना कि अगर वो ईमेल आईडी आपका मिस हो गया है। हाँ, तो इंश्योर कि नेक्स्ट मेरे से भी गलती, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, डेफिनेट। सिर्फ कल सर एक बार आप फिर से ये बता। हाँ श्योर। हाँ सर, एक्चुअली मेरा आज प्रेजेंटेशन था 10 बजे का, तो मैंने वो प्रिपेयर किया था, वो ऑब्वियसली इस पैटर्न में नहीं किया जो अभी दिखा रहे थे आप, तो थोड़ा अलग था, लाइक ब्रीफ में था एक्चुअली। तो वरुण ऐसा नहीं है कि इसी पैटर्न में बनाना है, बट द आइडिया ऑफ शोइंग दिस टू यू कि आप ये इंफॉर्मेशन से अगर आपको लगता है कुछ रिलेवेंट है अपने प्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए तो कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको यही इस तरीके से बनाना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू अ मेथोलॉजी। ये भी एक तरीके होते हैं, ये भी एक सेगमेंट्स होते हैं। अगर आप मोस्ट ऑफ देखेंगे तो पहले ही आपको बताया, बट इट्स जस्ट गिविंग यू मोस्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कि आप ये चीजें कवर करना चाहो तो कर सकते हो। राइट। और सर अभी नेक्स्ट सैटरडे आई वोंट बी देयर, लाइक मोस्टली 10 और 10 बजे मेरा एक्चुअली ऑफिस रहेगा नेक्स्ट वीक सैटरडे को। संडे को आई वुड बी अवेलेबल फॉर द प्रेजेंटेशन सर। ठीक है, तो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ तेरा संडे को है करेक्ट शायद, तुम इंटरचेंज कर लो। सिद्धार्थ तू ओके सैटरडे को देने को, बिकॉज अब तो काफी टाइम मिल गया करेक्ट। एक्चुअली सर सैटरडे को भी ना मेरा अभी क्या, और हम लोग का थोड़ा ये हुआ है, मर्जर हुआ है ना, तो थोड़ा काम चल रहा है ऑफिस का, तो अभी मैं काम ही कर रहा था ऑफिस का, तो मुझे जस्ट बोला तो ये गया, इसलिए मैं संडे को जो तो मेरा टाइम इधर उधर थोड़ा शिफ्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संडे को ही होगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप संडे को दे देना वरुण। ठीक है, Yes, मैं sir. सैटरडे को किसी और को शिफ्ट कर देंगे। दैट्स ओके। ओके सर, या थैंक यू सर। सर मेरा 17th को था, सो इज इट द सेम डे और इज इट चेंज? 17th, हाँ तो आपका तो सेम ही रहेगा ना, आपके क्या चेंज की कोई जरूरत होना है। ओके सर, चलेगा। सर आज के सेशन का तो थोड़ा जो मेन स्लाइड्स वो थोड़ा वरना तू सैटरडे को दे सकता है राहुल। सर एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं चेक करता हूँ। So yes, I can. चलेगा मेरे को, और I can do even on 17th also. I have no issues. Your call. ठीक है, सो लेट मी चेक विद दामनी। सो अगर 17th होगा तो तेरे को वो मैसेज कर देगी, अगर नहीं होगा सैटरडे को होगा तो तेरे को मैसेज आ जाएगा। चलेगा सर। ठीक है, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ समराइजिंग दिस, तो ये जो अभी हमने किया है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कि जब एक रिसर्च रिपोर्ट बनती है, ठीक है, वो रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनती है, तो उसमें ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो 3 सेगमेंट्स क्या होते हैं, और इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। और वो क्या होता है, E, I and C. E is for industry, E is for the economy, E is for economy, I for the industry and C for the company.
तो पहले आप इकोनॉमी के बारे में बताते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा मोटर्स का एनालिसिस करना चाहते हो तो टाटा मोटर्स इज एन इंडियन कंपनी, तो पहले आप इंडिया के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, सो यू विल हैव वन सेक्शन इन योर रिपोर्ट व्हिच विल टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी। देन इंडियन इकोनॉमी में से फिर आप इंडियन ऑटो सेक्टर के बारे में बता रहे हो व्हिच इज आई, एंड देन इंडियन ऑटो सेक्टर में से फिर आप एक कंपनी के बारे में टाटा मोटर्स, फिर आप वो बता रहे, फिर आप इसका बिजनेस मॉडल, इसके रेशियोज, इसके पेस्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, ये सब इंफॉर्मेशन आप फिर कंपनी के अंदर डालते हो। इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, EIC अप्रोच। ये ब्रॉडली आज हमने डिस्कस किया है। राहुल के साथ कुछ पूछना तो बताओ। नहीं सर, समझ गया। नो सर, ठीक है, ओके। क्यों इंपॉर्टेंट है वो, लाइक ग्लोबल इन्वेस्टर, मान लो आप टाटा मोटर्स की रिसर्च रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो सम सिंगापुर इन्वेस्टर, तो उसको टाटा मोटर समझने से पहले वो ये समझना जाएगा इंडिया क्या है, फिर इंडिया के बाद वो समझना जाएगा इंडियन ऑटो सेक्टर क्या है, फिर वो टाटा मोटर्स के बारे में इंटरेस्टेड होगा। सो दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग पहले सबसे मैक्रो व्यू, फिर थोड़ा और माइक्रो एंड देन माइक्रो, इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कितना मीन्स ये इकोनॉमी के लिए कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी एक है, हो सकता है ना? अगर इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है और एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन इकोनॉमी के GDP में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी भी ग्रो करेगी ना। राइट सर, ये मेरा पूछने का यही था सर। करेक्ट। कोई और डाउट क्वेश्चन? ठीक है, आपके प्रेजेंटेशन रिलेटेड कोई डाउट है किसी के तो पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं, बट अगर आज कुछ है तो पूछ सकते हैं। कुछ है सिद्धार्थ, राहुल, तुम दोनों का प्रेजेंटेशन रिलेटेड डाउट? एक ही पूछ रहा हूँ, बाय व्हेन विल दामिनी टेल मी इफ व्हेन इज माय प्रेजेंटेशन बोल के? आप एज्यूम करो 17th को, तो यू शुड बी रेडी एज पर 17th assumption। अगर वो एक्सटेंड करेगी तो तुम्हें एक्स्ट्रा ही टाइम मिलेगा, डोंट डू वाइस वर्सा। ओके सर, चलेगा। So if she tells you tomorrow के 17th को है, don't react and say कि अरे मैं इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर करूंगा। For you, assumption, तो for you the preparation date should be 17th. ऑलराइट सर। हेलो सर। सर जनरली हाँ पूछ लेना। Never. सर जस्ट एक अपडेट देना था कि मैंने जो बनाया था, आई हैव कवर्ड दीज ऑल थिंग्स: इंट्रोडक्शन, बिजनेस मॉडल, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, BCG मैट्रिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड रेशियो एनालिसिस। एनीथिंग एल्स इसमें और एडेड नहीं है ना? उसके लिए मुझे बस कंफर्म करना था सर। वो मैंने ऑलरेडी लिस्ट बता दी आपको, सो अब वो उसमें से आपको कौन सा डालना है वो आपका डिसीजन है। इसमें सॉर्ट है, सॉर्ट डाल सकते हो आप, रेशियोज आपने शायद डाल दिया है, सो ठीक है, पेस्टल डाल सकते हो, तो वो आपको डालना है कि नहीं डालना वो आपका डिसीजन है। ओके सर। ऑल्सो ये भी इंपॉर्टेंट है, उसका इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिल रहा तो भी नहीं डाल पाओगे, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में कभी कभी सब चीजें नहीं भी मिलती। राइट सर। तो आप इन सबका कॉम्बिनेशन यूज करो कि इन्फॉर्मेशन है नहीं है, और है तो वो आपको जो टाइम दिया गया 20 मिनट 20 to 25 मिनट, उसमें आपको कैसे कवर करना है, वो सब चीजें कॉम्बिनेशन करके आपको डिसीजन लेना है। चलेगा सर। यस सर इसमें ही एडिशनल मेरा एक था कि जनरली 9-10 स्लाइड हो जाएगी, तो जैसे अभी मैं पेस्टल कर रहा हूँ तो पेस्टल का जो है पूरा मेरा एक स्लाइड में मेरा कवर मैं करना चाहता हूँ। तो जैसे पॉलिटिकल है या सोशल है, उसमें से मैं 2 पॉइंट्स अगर डालूं तो ओके, या ऐसे कुछ है कि 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसे कुछ है सर?
हेलो हेलो वरुण, मैं ऑडिबल हूँ क्या? हाँ सर का आवाज नहीं आ रहा है जस्ट। हाँ 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 तेरा कुछ तो नेटवर्क इशू सर था, का नहीं आ रहा। क्वेश्चन रिपीट करेगा, तेरा ब्रेक हो रहा था हाँ हमारा। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था सर, जनरली अभी जैसे हम लोग अगर ये सब करें तो है ना, 10 से स्लाइड्स हो जाते हैं। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी फेस्टल है, फेस्टल में से मैं पॉलिटिकल के लिए मैं 2 पॉइंट्स डालना है या 3 पॉइंट ऐसे कुछ है, या मैं 2 पॉइंट 2-3 पॉइंट इससे डाल सकता हूँ? यार वो तुम्हें डिसाइड करना है कि 2 पॉइंट डालना है, 3 पॉइंट डालना है। यू शुड नॉट मिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट? एंड देन अगेन ओवरऑल जो करेक्ट, टाइम हाँ। लिमिट है उसका ध्यान रखना है आपको। ओके ओके, वो करके हम लोग 20 हमें मिनट्स मैनेज का करना है। 25 मिनट्स होगा चलेगा, बट आप 25 मिनट्स को 60 मिनट्स बनाओगे तो उतना नहीं चलेगा ना। राइट, एट ठीक द है सेम ठीक है टाइम यू सर, शुड नॉट मिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। करेक्ट, ठीक है अगर सर। बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू बिलीव आई एम हैप्पी टू गिव अनदर 5 मिनट एक्स्ट्रा। 25 का 5 ओके, मिनट एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ मैं, बट इट कांट कीप ऑन गोइंग ना। राइट राइट सर, राइट, ठीक है सर, मीन्स रिजनेबल होना चाहिए। थीसिस नहीं लिखना है आपको। नो सर, ठीक है सर। और मोर इन्फॉर्मेशन स्लाइड पे नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए। ये जितना भी कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे हैं ना, जितने भी आप लोगों में, सब फंसने वाले हैं, बता रहा हूँ। अगर आपने कॉपी करके कुछ सोच लिया, हाँ कॉपी कर दिया मैंने, उससे काम हो जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा उसमें कहाँ से आया, क्या लॉजिक है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हो। श्योर हाँ सर, जी, श्योर। कुछ और, कोई और क्वेश्चन? सर एक कैगर को हम अगर फॉरवर्ड में देखें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सॉरी, कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर हम फॉरवर्ड में देखें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा। सीएचईआर को फॉरवर्ड में देखें मतलब व्हाट डज दैट मीन? Normally what we do is we take the previous 10 years, we see what is the every year return that we get, and then we average for not exactly average, but we use that to make the CAGR amount. Am I right there? ये अभी भी समझ नहीं आया मुझे। Okay, so basic sir, क्या बोल रहे हैं? Normally CAGR, what we do is we take the tenure of the investment, and then we see how many years we have, like what is per year return that we are getting, and then you average it out in a gradual format. एजुअल तो फॉर्मेट उसको, नहीं होता, कंपाउंडिंग फॉर्मेट होता है वो। हाँ सर, कंपाउंडिंग फॉर्मेट उसको। कंपाउंडेड एवरेज की ऑन एन एवरेज कंपाउंडिंगली आपने क्या रिटर्न कमाया या क्या रेट है। समझा सर। सर अगर मैं उसको, अगर मैं स्लाइड पे डाल रहा हूँ, एंड इफ टुमारो इफ यू आस्क मी 2% कैगर उसका क्या मतलब है, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर हम लोग? तो 2% जो सीएजीआर है वो क्या है? अगर लेट्स से 2% सीएजीआर 5 साल के डेटा पे है, सो इट मींस कि उस 5 साल के पीरियड में एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट 2% रहा ऑन अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। ओके, कंपाउंडिंग एवरेज पता है तेरे को क्या होता है? नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं। जैसे अगर 10% ग्रोथ हुआ
₹100 है, 100 पे 10% ग्रोथ हुआ तो वो ₹100 ₹110 हो गया। कंपाउंडिंग होता है, फिर 110 पे दोबारा 10% ग्रोथ होगा तो वो 121 हो जाएगा। जब इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट होता है तो उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। हाँ वो समझ आया सर मेरे को। हाँ जी, और कोई डाउट क्वेश्चन? लास्ट टाइम एनी क्वेश्चंस? प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछिए। अगर आज नहीं कल पूछना चाहते हैं तो प्लीज कल पूछ लीजिए। कल लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि कल के बाद फिर आपके प्रेजेंटेशन होंगे ना, उसके बाद मॉक्स होगा। ठीक है? नो सर, आज तो कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। राहुल, वरुण, राधा, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? नॉट फ्रॉम माय साइड सर। नो सर, नो सर। No, sir. Thank you. ठीक है। सो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। आप प्लीज प्रेजेंटेशन को डाउट हो तो ले आना, और आपके प्रेजेंटेशंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीकेंड उसके और होंगे। प्लीज, लास्ट टाइम आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस प्रेजेंटेशन वुड बी इवैल्यूएटेड, देयर वुड बी एन असेसमेंट अराउंड दिस, स्कोर्स होंगे, दिस स्कोर्स will play an important role for you to get these certificates and then complete this journey. So please take it seriously. Do not try and take it casually. कि एक बार मैंने जो स्कोर सबमिट करा वो चेंज नहीं होंगे। सो प्लीज पुट योर बेस्ट, ठीक है, टू एंश्योर कि आप इसको प्रेजेंटेशन को जस्टिफाई कर सको। And also try and focus more on the analysis part. I am not interested in too much of formatting. Do not try and waste too much of time in creating animations, creating formats. Try and spend more time on the analysis part. क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, we'll connect tomorrow. चलिए, thanks, bye. थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।